lack of engineering/IT communities of Pakistan. Salam Junaid Bhai, my name is ABC. I'm from Lahore, currently pursuing my master's degree in IT from University of Melbourne. I found it very hard to make quality friends when I came to Australia this year. I connected with a lot of students from Pakistan who helped me start Uber Eats and Menulog food delivery on a cycle. I also made good Indian friends and a few Nepali and Sri Lankan friends when I was doing my job, as they would be the ones I would regularly pick up orders from in Domino's and McDonald's. फतवे नहीं है बेटा आपको. As studies continued, I got into serious troubles with my university assignments. I was made to sit in front of ethics committees because they identified that I had done my assignments with the help of a third party, as the Turnitin software score was above 25%. I had taken the help of one of my Uber friends, who is also from Lahore, in doing a few questions which I suspect were shared among others, hence the plagiarism. Back in Pakistan, we used to do 20% practical assignments through group studies only, but here the game was completely different, and the weightage of practical assignments is over 50%, and exams are open book exams mostly. After this, I stopped taking help from that group and instead found help groups online, and alhamdulillah, I cleared my rest of the 3 subject assignments. These help groups were Discord communities, SQL and Python subreddits, WhatsApp groups which would share YouTube videos of concepts or pirated copies of premium courses of Udemy, etc. I even joined CISA, CISSA, Computing and Information Systems Students Association, and started attending regular IT club meetings in UniMel, University of Melbourne. When I repeated my subject which the university had failed me in because of plagiarism, I noticed most of these help groups had Indian students, some Asians, behind the screen. One of them was an aspiring professor who was trying to understand students' problem and doing a soft practice of being a professor. I tried searching for Pakistani diaspora in these help groups and Pakistani communities targeted towards STEM subjects, but I'm not kidding, I could not find even single one of them. वो साहिल अदीम के इवेंट पे गए होंगे सारे. And if there was one namesake, the engagement was nil and simply too inactive to have a back and forth. I understand that my purpose got solved through the Indian groups and they didn't discriminate even one bit, but it would have been awesome if I would have known these things in my bachelor degree as well and would not have learned about them the hard way, which costed me $6,800 as I repeated the subject I failed. My purpose is not to rant about absence of Pakistani IT community and feel jealous of Indians, but through this email/question in your Ask Ganji Swag episodes, if we can initiate and reflect why there is an absence of active Pakistani communities, that would be great. I'm so grateful to the friends I have now who I feel are carrying me through my studies now, else I would have been in grave depression. Also, you can give a shout out to these subreddits and Discord links. It may prevent students like me from making the mistake. Subreddits are Indian _ academia, Developers India, Discord /India-Tech. Thank you for taking my question. Lots of दुआएं for you and your family. Thank you. Alright जी, so ये एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, ऊबर ईट्स कर रहे थे और थर्ड पार्टी से असाइनमेंट कराया जो कि पकड़े गए. और जब वो पकड़े गए तो उनको एथिक्स कमेटी के सामने बैठना पड़ा. $6,800 का फटका लगा, जो $6,800 शायद आपने ऊबर ईट्स से कमाए भी ना हो. And because you were clearly doing more hours Uber Eats पे, इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस मकसद से गए उस मकसद से नहीं हटना चाहिए. बट अगेन सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है इकोनॉमिक, आई एम नॉट जजिंग, लेकिन हम अपने मकसद से फ़ौरन हट जाते हैं. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीपल कंट्रीज़. वो जाके पढ़ाई साइड पे करते थे जिस काम के लिए गए होते हैं, और वो फिर वो ऊबर ईट्स अंडर द टेबल काम करना वगैरह वगैरह, इस पे ज़्यादा फोकस होता है. अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हम 20% प्रैक्टिकल था और बाकी दूसरा अलग था, यहाँ पे 50% प्रैक्टिकल होता है. देखिए बात वही है, यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनको शुरू के 2-3 साल अर्न लर्निंग में लग जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ जो 20 साल लर्न किया होता है वो अप टू डेट नहीं होता, अप टू द मार्क नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं होती उसकी. Your email writing is good, not the best.
लॉट्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स, खैर बोलेंगे यार आप क्या ये चीज़ें पकड़ते रहते हो, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई एम वेरी एनल अबाउट दीज थिंग्स. एनीवे, सो प्लेजरिज्म भाई एक बहुत रिस्की काम होता है. और अगेन वही वाली बात है ना, बिकॉज हमें यहाँ इतनी आदत हो गई है हर चीज़ की आज़ादी, हम कुछ भी कर लें. पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, एक लड़की बैठी हुई थी हु वॉज क्लियरली अ फॉरनर, और उसके मुंह पे जाके यूँ कैमरा रखा और बोला बच्ची कितनी टाइट है, एंड शी सेड मुझे उर्दू आती है, और वो एम्बैरस हो गया. अगेन ये सीधा सीधा पुलिस केस है, मगर चूंकि यहाँ कभी पुलिस के रैप्टे ही नहीं पड़े लोगों को, तो यहाँ जिस तरह खुल्लम खुल्ला घूमते हैं इसी तरह दुनिया भर में भी ऐसे है. फिर वो गंदी फिल्में देख के समझा है कि ये तो सारी टांगे खोल के हर वक्त बैठी हैं हमारे लिए, तो ये तो हमारी गुलाम है. और ये पता नहीं किसने मशहूर किया हुआ है कि गोरियों को पाकिस्तानी लड़के बहुत पसंद हैं, ये उनके सीने के बाल बड़े पसंद हैं. किसने बताया तुम लोगों को? तुम्हें यहाँ की लड़कियाँ नहीं पसंद करती तो वो क्यों करेंगी? बट खैर, तो हमें चूंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की आदत नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके सोचते हैं कि हम हर गलत काम करेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा. और फिर जब पकड़ाई होती है तो फिर आप नहीं पूरा मुल्क बदनाम होता है. जैसे कि टर्की में हमने देखा कि वो अपस्कर्ट्स तस्वीरें खींच रहे थे लोग, जो लड़की जा रही है उसकी वीडियो बना रहे हैं. आप किसी फ़्लाइट में बैठ जाएँ, किसी सस्ती वाली फ़्लाइट में बैठ जाएँ, जो यूएई, जो मिडल ईस्ट से पाकिस्तान आने की है, जैसे कि जो बजट एयरलाइंस होती हैं, आप उसमें देखें लोग कैमरा लेके वो एयर होस्टेस की वीडियो बना रहे होते हैं. तो बिकॉज इनको कॉन्सिक्वेंसेस की आदत नहीं है, तो इसी तरह प्लेजरिज्म में भी समझते हैं कि हाँ यार खैर है, हम वहाँ लाहौर में भी करते थे तो यहाँ भी होगा. प्लेजरिज्म पे बाकायदा पुलिस केस हो सकते हैं. इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. पाकिस्तानियों को ये बात समझ ही नहीं आती. इतने दीनदार लोग हैं आप माशाल्लाह, इतने मजहबी आप लोग हैं. आपकी रिंगटोन पे मौलवी की आवाज़ होती है, आपकी टाइमलाइन घोलो मौलवी होते हैं, लेकिन आप ये बेसिक चीज़ क्यों नहीं समझ पाते कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़ाती चीज़ होती है. अब लोग मेरी वीडियो उतार के, खैर अब तो ये स्ट्रिक्ट हो गए यूट्यूब और फेसबुक, ऑब्वियसली इन्होंने भी इवॉल्व किया है, बट एक ज़माने में मेरी वीडियोस पे मेरे से ज़्यादा व्यूज़ उन रैंडम पेजेस में होते थे जिन्होंने लगाई हुई होती थी. और उनको बोलो उतारो तो कहते नहीं ये तो इंटरनेट पे पड़ी थी तो हमने लगा दी, तो इंटरनेट तो ओपन फॉर ऑल है. तो मैंने बोला यार अगर यही इस तरह मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी है तो वो तो बीच सड़क पे खड़ी है, तो कोई भी उठा के ले जाएगा क्या? मगर लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती. कॉपीराइट मीन्स द राइट टू कॉपी. ज़िंदगी में कभी अभी देखो ना, मुझे वो वार्निंग वाला मैसेज आ रहा है कि मेरा ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने वाली है. नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग मी. मैं यहाँ पे वो की वाली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लगा लूँ कौन पूछेगा? ज़िंदगी भर यही किया क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया था. बट नाउ दैट वी नो, और अंदाज़ा है कि लोग मेहनत से चीज़ें बनाते हैं. मैं ख़रीदता हूँ सब्सक्रिप्शन साल की $70 की जो भी है, देता हूँ मैं. एंटरप्राइज पैकेज है जो भी होता है. नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं हो, कहते हैं हाँ ये तो गलत काम ही नहीं है. गलत टूल्स, पायरेटेड टूल्स लेके मजहबी चैनल बना लेंगे, मगर वो टूल्स पायरेटेड यूज़ करेंगे. तो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी की स्पेस क्या होती है, किसी के राइट्स क्या होते हैं, पर्सनल स्पेस क्या होती है, हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का. अब यही सोच के ना मेरा दिमाग ख़राब होता है कि किस लेवल पे जाके इस कौम की तरबियत करनी है. इनको कोई कुछ नहीं सिखाता. कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज सुबह ट्वीट की हुई थी नेशनल स्टेडियम की तस्वीर कि इतना कूड़ा करके गए. एक कल मैच हुआ है, हालांकि स्टेडियम में कुछ मिलता भी नहीं है, पता नहीं किस तरह लोग चिप्स विप्स अंदर ले गए. इतना कूड़ा, वो कचरा कुंडी लग रही थी. राइट, सिखाया ही नहीं कभी लोगों को. दूसरी तरफ घर जाके शेयर करते हैं वही वीडियोस के जापानी जो है फीफा में पूरा ग्राउंड साफ करके गए. तो तुम्हें किसने मना किया? जापानियों को तो नहीं बोला कि जी सफाई निस्फ़ ईमान है, बोला तो तुम्हें गया है, मगर अमल ही नहीं है. तो कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी किस्म के नहीं होते, और फिर जो है वो लर्न करने में ही आप 2 3 4 साल लगा लेते हैं बाहर जाके. इसलिए कहता हूँ जितनी जल्दी निकल सकते हो, जितनी जल्दी अनलर्न कर सकते हो वो अनलर्न करें. खैर, तो $6,800 आपको फटका लगा. आप क्लियरली इफ़ यू वर्किंग ओवर आवर्स, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे होते, अगर आप लिमिट में काम कर रहे होते, आपके पास टाइम होता, रिसर्च का टाइम होता, असाइनमेंट बनाने का टाइम होता. द फैक्ट दैट यू हैड टू गो टू अ थर्ड पार्टी मीन्स यू आर वर्किंग इलीगली. अब अगेन उसमें भी इलीगल लोग कर लेते हैं काम. तो क्लियरली है यार एक चीज़, लॉ ऑफ द लैंड अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो कमाई हराम है. पीरियड, बात ख़त्म. मगर नहीं, बस सुअर नहीं खाएंगे. हक खाएंगे, बहन का हक खा लेंगे, बहन की जायदाद खा लेंगे, शराब भी पी लेंगे, गोरी के साथ सो भी जाएंगे, सब करेंगे, सुअर नहीं खाएंगे. पता नहीं क्या है यार. सो इन चीज़ों का ख्याल रखें. प्लीज़ अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये चोरी के ही मुतरादिफ है.
अगर तो 1400 साल पहले ये टेक्नोलॉजी होती तो इस चोरी की भी सज़ा हाथ न काटना होती तो उंगली काटना ज़रूर होती, क्योंकि ये चोरी है, किसी की आप चीज़, किसी की मेहनत की चीज़ आप अपने ऊपर चुपका रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, लीगैलिटी को समझिए और आगे बढ़िए। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं आप, आपको कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं मिली। देखें, फिर वही वाली बात है, हमारे लोग सियासत से, मज़हब से, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ज़िंदगी में इन चीज़ों का अमल दखल नहीं होना चाहिए, मगर हर चीज़ अपने तनासुब के साथ होनी चाहिए, और जिन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट नहीं है उससे इज्तनाब करें, आगे बढ़ें। लेकिन हम बस इन दो चीज़ों को लेके, हम जहाँ जाते हैं हमें सबको पहले तो मुसलमान करना है, दूसरी चीज़ जो है हमें जाके जो है अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में अमल दखल, फिर जो है हमने जाके पीटीआई की रैलियां भी निकालनी है, या फिर हमें फलाना भी करना है, फ़लस्तीन उम्मा भी करना है, सब करना है। नहीं करना तो जिस काम के लिए गए वही काम नहीं करना। खैर, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं, ये ना करें। जैसे कि मैंने कहा, तनासुब से, मीज़ान से, बैलेंस से, इस्लाम हमें हर चीज़ का बैलेंस सिखाता है। लेकिन हमें जो है अपना काम छोड़ के हर किसी का काम करने का बहुत शौक़ है। और हमारे मुल्क में भी देख लें, जिसका काम जो है अदालत में मेक श्योर करना है लोगों को इंसाफ मिले, वो डैम बना रहा होता है। जिसका काम डैम बनाना है वो डैम फुल बना रहा होता है। सो ये हमें एक ना विरासत में मिली है ये चीज़ कि हमें लग के चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, हम में ना यूनिफिकेशन वाला आंसर नहीं है। हम लोग नेशनलिस्ट नहीं हैं। वो जो नेशनलिज्म आप देखते हो ना, जी इंडियंस तो बड़ा सपोर्ट करते हैं, दैट्स बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म। जर्मन्स आर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म, रशियंस आर ड्रिवन बाय नेशनलिज्म। हम में नेशनलिज्म, हम में कौमियत पसंद है। तू कौन है, सिंधी है, अबे खल्ली वल्ली कर इसको। तू कहाँ है, हिंदुस्तानी, अच्छा जी कहाँ का है, मीरठ का है, फारिग कर, इलाहाबाद वाला इधर आ जा, अमरोहे वाला मेरा दोस्त है मगर कलकत्ते वाला नहीं है, भोपाल वाला नहीं। भाई ये इन्हीं चीज़ों में हम कौमियत को ज़्यादा फोकस रखते हैं। सिंधी, पंजाबी है तो अच्छा नॉर्थ का है तो इधर हो जा, साउथ का है तो खल्ली वल्ली हो जा, पश्तून है तो भाई अजीब। तो हम तो नेशन कभी बने ही नहीं। जब हम नेशन बने नहीं, हमने नेशन का कभी सोचा ही नहीं। हम इंडिविजुअलिस्टिक हैं सारे। हम सब चाहते हैं किसी भी रास्ते से 2 नंबरी करके, 1 नंबरी करके, 1.5 नंबरी करके बस हम आगे निकल जाएं और हम वाह कराएं अपनी, और हम जाते ही ऑस्ट्रेलिया में BMW ले लें पहले साल, मॉर्गेज के साए तले दब जाएं, क्रेडिट कार्ड्स के डेट में बन जाए, लेकिन हमारी शोशा पूरी हो। हम सोचते ही नहीं है अपने घर से बाहर, कभी हम नहीं सोचते कि यार हमने, अगर हम किसी अच्छे मुल्क में आए हैं, हमें एक नॉलेज बेस मिला है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो हम इसको नर्चर करें। अब अगेन मैं मेलबर्न की ही एक यूनिवर्सिटी की मिसाल दूंगा जो मेरे दोस्त ने बताई। सोसाइटीज़ हम देखते हैं, इंडियन सोसाइटीज़ अगर आप देखें तो वो एकेडमिक तो होती ही होती हैं। आपको चेस की भी सोसाइटी मिल जाएगी। क्या आपको पाकिस्तान की कोई क्रिकेट की सोसाइटी है किसी यूनिवर्सिटी में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। स्पोर्ट्स की कोई सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी शायद निकल आए कोई ना कोई। सो लाइक इतने इवेंट्स कराते हैं। अगर आप इंडियन सोसाइटीज़ की बात करें, आपको देयर इज़ अ रीज़न ना, सॉफ्ट पावर ऐसी आगे जाती है ना। अब जब एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 190 मुल्कों के बच्चे आ रहे हैं और देख रहे हैं यार वहाँ दिवाली हो रही है, वहाँ होली हो रही है, सो यू नो दे विल बी मोर लाइकली टू चलो हम भी आ जाए। हम तो यहाँ किसी को मैरी क्रिसमस कहने के रवादार नहीं, तो जब हम किसी को कहने के रवादार नहीं तो हमें किसी से सुनना भी नहीं है, राइट। हम जाके अपनी अपनी छोटी छोटी मस्जिद बना लेते हैं, फिर उसको और छोटा कर लेते हैं। वही ARY, वही जियो, वही अंकल, वही शाहीन आंटी, वही मंजूर अंकल, यही हमारी दुनिया रहती है। हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते। इंटीग्रेट का मतलब नहीं कि बैठ के तुम भी शराब पी रहे हो, अपनी लिमिट में रहो, जो तुम्हारी बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज में रहो, अगले को उसकी बाउंड्रीज में रहने दो। लेकिन मिंगल करें, कोलैबोरेट करें, जानें, इंटरकल्चरल एक्सचेंज करें, अपने मुल्क की कोई चीज़ें, 4 आम ही खिला दे किसी गोरे को, वो गिरवीदा हो जाएगा। आई वेंट टू मैं यहाँ स्ट्रैटफोर्ड मॉल के पास, देयर वाज दीज किड्स, मुझे वो मॉल में मिले थे, वंडरफुल किड्स। अगेन वही बच्चे जो 18 साल की उम्र में यहाँ से कट गए थे, सही डायमेंशन में चले गए। नाउ दे वर्किंग फॉर द बिग 4, they're scoring great numbers, they had a great apartment। छोटे छोटे बच्चे थे, क्या अपार्टमेंट था उनका। सो उनका एक फ्लैटमेट था, ही वॉज फ्रॉम युगांडा और नाइजीरिया, वन ऑफ द टू। उसने कुछ नहीं किया, उसको जाके यहाँ के आम खिला दिए। उसकी एक वीडियो थी, वो आम खा के डांस कर रहा है गोल गोल, कह रहा है मैंने इतनी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में नहीं खाई। देन ही कॉल्ड हिज मॉम कि मैं ये आम खा रहा हूँ। सो सॉफ्ट पावर करें यार, कुछ छोटे मोटे इवेंट्स करें, भाई हमारे मुल्क के आम है ये खाएं, हमारे मुल्क की ये चीज़ें हैं, आप ये करें वो करें वो करें, इंटीग्रेट करें, सोसाइटीज़ बनाएं।
अब जब ज़ाहिर सोसाइटीज़ का कल्चर होगा, अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था एक सोसाइटी एक बंदे ने बनाई थी, और उसने, मैंने पहले भी जिक्र किया है, उसने यूनिवर्सिटी से बजट लिया, अच्छे खासे पैसे मारे, और एंड में बोला कि जी वेंडर्स नहीं आ रहे, तो वो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो $5,00,000 खा गया। उस $5,00,000 की वजह से, उस यूनिवर्सिटी का नाम डी से आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की है वो एक, उस हरकत की वजह से उस बंदे, उसका मैंने फेसबुक भी देखा है, शक्ल से ही जो है ना चोर लग रहा है, तो 5 से 6 साल तक उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की पाकिस्तानी सोसाइटी बनाना अलाउ ही नहीं था। नाउ इमेजिन, वो एक $5,000 क्या रकम होती है? कोई रकम नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने का चल रहा है भाई आजकल? 200 का है फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख में मेहरान नहीं आती। एक मेहरान से भी सस्ता ने एक बंदे ने मुल्क बेच दिया। ठीक है ना, हम कहते हैं कि जी जनरल्स करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, ये भी आपने मुल्क बेचा है, मगर ये करप्शन चूंकि अखबार में नहीं आएगी, जियो में नहीं आएगी, हल्ली वल्ली किसी को पता ही नहीं है। 10 लाख रुपए में आपने जो है अपने मुल्क के हज़ारों स्टूडेंट्स जो उस यूनिवर्सिटी में जाके बहुत कुछ कर सकते थे, आपने ख़राब कर दिया। सो रेपुटेशन अच्छी नहीं है, सियासत मज़हब जहाँ जाना उसी का प्रचार करना है। भाई पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करें, सोसाइटीज़ बनाएं। आई एम श्योर बहुत सारी होंगी, और बहुत सारी देर आर मैनी दैट आई एम अवेयर ऑफ, जो इंजीनियरिंग सोसाइटी है NED के अलमनाई की US में, दे आर वर्किंग फंटास्टिक। जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है अगेन इन अमेरिका, अपना जो है दे आर डूइंग फंटास्टिक वर्क। मगर वो ये कि वो ग्रेजुएट्स हैं, वो सीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बनाई हुई हैं, अलमनाई की है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस तरह की, मगर हमारा देखिए ना, हमारा रिवाज जो है ना, शेयरिंग वाला रिवाज नहीं है। हमारा रिवाज है कि ये 10 है ना, 10 में से 8 हैं वो तो मेरे हैं ही हैं, ये जो 2 हैं ये भी मैं ही ले लूँ। सो हमारा ना ये जो माइंड सेट है कि हमने शेयर नहीं करना, नॉलेज शेयर नहीं करनी, ये आगे ना निकल जाए, ये इनसिक्योरिटी मुझे, ये वहाँ ना पहुँच जाए, हम शेयर नहीं करते। ये हमारा एक फितरत है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे हु आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, maybe in Estonia, maybe in Finland, maybe wherever they are. There are wonderful Pakistanis out there, और वही मेरी होप है, वही बच्चे मेरी होप है, एंड आई लव दोज किड्स, यू राइट। मगर जो ओवरऑल हमारा एटीट्यूड है वो ये है कि हमें शेयर नहीं करना, हमें जहाँ भी जाना जाके कुंडी लगा देनी है, एंड दैट्स द रीज़न वाई यू डोंट सी। अब ये कहना कि नहीं जी इंडियंस बिकॉज वो आबादी उनकी 1.5 अरब है तो वो हर चीज़ में ज़्यादा नज़र आएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चलो इस तरह अगर ये लॉजिक लगाएं कि इंडिया इज़ 6 times द साइज ऑफ पाकिस्तान, सो बाय दैट डेफिनेशन एवरी 7th CEO ऑफ अ टेक जायंट शुड बी अ पाकिस्तानी, बट इज दैट द केस? इट्स नॉट द केस। रह दे के KFC का जो है CEO पाकिस्तानी है, और भी होंगे आगे पीछे, बट जो हम बड़े बड़े टेक जायंट्स देखते हैं वहाँ तो वी ओनली सी इंडियंस, राइट। तो अगेन इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट्स अबाउट द फैक्ट, खैर इंडिया पाकिस्तान तो आपने खुद मेंशन किया है कि आपको बहुत सारी वहाँ सपोर्ट मिली। तो जो लोग बच्चे सुन रहे हैं, प्लीज़ गेट इनटू दिस, ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ, अब आप बोलोगे जी मैंने अगर ईद मिलन पार्टी कर ली तो उसका मेरे करियर में क्या फ़ायदा है? इसका करियर में बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्यों नहीं होगा? दैट यू कैन कॉन्ग्रीगेट एन इवेंट, यू कैन पुल अ जॉब। आप एक असाइनमेंट अच्छी तरह कर चुके जिसमें 5,000 बंदा आया था, उसमें आपकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी, आपकी नेटवर्किंग होगी, देयर आर लाइक thousands of opportunities. This is the reason why these societies exist in the first place. तो आपको क्या लगता है जो इतने बच्चे दुनिया भर में ये कर रहे हैं, क्या इनको फ़ायदा नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है। सिमिलरली अगर हम रेडिट की बात करें, डिस्कॉर्ड चैनल्स की बात करें, अगर हम यूट्यूब की बात करें, वो अक्सर 9gag पे मीम आता था ना कि थैंक यू रैंडम इंडियन गाय फॉर टीचिंग मी व्हेन नो वन वाज आउट देयर। सो लाइक इंडिया ने ये ये इमेज अर्न की है दुनिया भर में। सिमिलरली मेरा फ़ोन कहीं भी फंसा, सो आई हैव नथिंग फ़ोन, राइट। अभी दिस फ़ोन इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम आईफोन एंड सैमसंग, है तो एंड्रॉयड बट बहुत डिफरेंट है। सो मुझे, मैं कहीं भी फंसता हूँ, वेन एवर आई गो फॉर अ ट्यूटोरियल इट्स ऑलवेज एन इंडियन गाय, और मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ बिकॉज वो मेरी लैंग्वेज बोल रहा है। अगर मेरी लैंग्वेज नहीं भी बोल रहा, मैं इसको ज़्यादा, आई एम फार मोर कनेक्टेड विद हिम देन आई एम कनेक्टेड विद एनी स्वीडिश गाय आउट देयर। मैं इसको क्यों सुनूं? एफिनिटी मेरी इस इंसान से है ना। सो सिमिलरली हमारे सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, एकेडेमिया ग्रुप्स होने चाहिए, हमारे ट्रबल शूटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स। मगर फिर वही रह दे कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहाँ 4 पाकिस्तानीज इंडिविजुअली आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल्स आई हैव मेट, नो डाउट अबाउट दैट, इंडिविजुअली, राइट। वो आपकी दिल गो माइल्स अहेड
इन टर्म्स ऑफ अगर आप कहीं फंस जाते हो, वो बहुत आपका साथ देंगे। मगर जहाँ 4 जमा कर जाएं, वो बस पीटीआई 2 पीटीआई के होंगे, 2 नून लीग के होंगे, वो तेरी माँ की तेरी बहन की ये करके घर चले जाएंगे। ना नून लीग को कोई फ़ायदा हुआ, ना पीटीआई को फ़ायदा हुआ। खान साहब फिर भी अंदर है, मियाँ साहब फिर भी बाहर है। ठीक है, अपना टाइम ज़ाया करेंगे इन फजूलियात पे, और कोई ना हासिल ना हसूल। सो सोसाइटीज़ बनाएं, अच्छे इवेंट्स कराएं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में फैलाएं। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू गाइज आर द एम्बेसडर्स। लेकिन आपने वही अगर $5,000 पे मुल्क को खुड्डे लाइन लगाना है अगले 6 साल तक, तो फिर देन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स, एंड आई एम नॉट सरप्राइज व्हाई दैट हैपेंड एंड व्हाई यू डिड दैट। सो प्लीज़ ये प्लेजरिज्म हो गई, ये सारी चीज़ें इनको अवॉइड करें। जिस मकसद के लिए गए उस मकसद के साथ जुड़े रहें, और यू कैन अर्न मल्टीपल फोल्ड्स। मसला ये ना कि हम सब कुछ आज ही चाहिए। वी डोंट वांट टू पुट इन द वर्क, राइट? अगर इफ़ आई एम रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस बिजनेस, उसको मैंने 20 साल भी तो दिए, राइट? अगर मैं पहले दिन से लग जाता यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं वो छोटे छोटे हिट कर रहा होता, मैं जैकपॉट नहीं हिट कर रहा होता, राइट? सो अलाउ टाइम, हैव सम पेशेंस। दुनिया अपने हिसाब से चलती है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, 40 के बाद जो है ना, असल लाइफ 40 के बाद शुरू है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं 40 का हो गया तो अब मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। लाइक यू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिंदगी, मर्द की ज़िंदगी बदल जाती है। अगेन आई एम नॉट बीइंग सेक्सिस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अदर 40-year-olds दैट आई नो। लाइफ चेंज हो जाती है, बिल्कुल बहुत ईजी सीन हो जाता है ज़िंदगी में, प्रोवाइडेड you have, like, you've put in the grind in your 20s and your 30s, you've been focused, you've been disciplined। 40 के बाद आराम है, राइट? सो ये सीन है। एंड लास्टली, जैसा कि मैं पिछले भी कई एपिसोड्स में और कई वीडियोस में कहा है कि वी टेंड टू जॉइन दीज जॉब्स जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन का मैं, एज अपोज टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जहाँ पे यू हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन विद पीपल। देखो, बात से बात निकलती है, बात से राहें खुलती हैं, right? I have made a promise to myself. I've been a dickhead introvert for as long as I could remember. But now, अब मैं for example, मैं 2-3 events में था. कल सिकंदर बख्श साहब से मैं मिला। उन्होंने मिलते ही बोला, यार तुम सबकी सही लेते हो, राइट? एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं उनसे एक इवेंट पे मिला, वो ही हग्ड मी। बहुत सारे लोग थे, ज़ाहिर उनके इतने फैंस हैं। उन्होंने मेरे कान में बोला, यार तुम बहुत बड़े हो, राइट? आई मेट अ मीडिया जाइंट, लाइक आई मीट सच पावरफुल पीपल एंड दे ऑल नो मी। तो मैं ये कनेक्शंस क्यों नहीं यूटिलाइज करता? नाउ व्हेन आई से यूटिलाइजेशन, आई डोंट मीन कि वो मैं इनसे किस तरह पैसा बनाऊँ। नो, how can I align my forces with their forces and then do something for the greater good of the country or the people or the youngsters? So I made a promise to myself that I'll be meeting tech giants, from now on. I'll take them out for dinner or coffee or whatever, and I just want to pick up their brains. I just want to know what they're doing. I want to get into the VC role. Even though I make a lot of videos about real estate, but हमारे मुल्क को पीछे रहने की एक बहुत बड़ी वजह भी यही है कि हम सारा पैसा ज़मीन में दबा देते हैं। दैट मनी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, बट बिकॉज इट्स सेफ, दैट्स व्हाई वी डू इट, एंड आई हैव डन इट टू। सो मैं इसको छुपाऊंगा नहीं, मगर इट शुड बी पुट इन टू द आइडियाज़। शार्क टैंक देख के अगर मैंने करना वही है जो मलिक रियाज करे, तो फिर फ़ायदा क्या? सो आई वॉन्ट टू get into the business of VC and fund ideas. 10 में से 8 फेल होंगे, 9 एवरेज होगा, बट 10वां जो है दैट कुड बी द नेक्स्ट Uber and that could help a lot of people. So for that I need to understand the market, understand the trade, understand the challenges, and इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, LinkedIn पे सारे फॉलो भी करते हैं। all I need is to एक DM ही तो मारना है। It's just I'm very shy. हाँ, स्पीकिंग ऑफ शाय, ये बहुत सारे इंडियंस जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है। मैंने जो बीच में रोड शोज़ किए हैं जहाँ पे मैं लोगों से पूछता हूँ वोट किसको देना है या वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि एक औरत नहीं आई, पाकिस्तान कितना बैकवर्ड मुल्क है और सारे मर्द घूम रहे हैं, ये औरतों को घर में रखते हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मेनली गो टू द मार्केट्स जहाँ पे जो मर्दों की मार्केट, फॉर एग्जाम्पल कैमरे की मार्केट है, वहाँ औरतों का क्या काम? ख़वातीन की मार्केट उसके पीछे है, बोरी बाज़ार, राइट, जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं। जो मेन चीज़ है, आई एम वेरी शाय, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके किसी के मुंह में घुस जाऊँ,
ठीक है. Men on the other hand I can handle. अगर वो बोलेंगे यार I'm not comfortable या मैंने नहीं देना, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, I don't want to be on the camera, so I say okay fine. बट ख़वातीन जो हैं, अगेन इतनी डाइवर्सिफिकेशन है पाकिस्तान में ख़वातीन की कि सम आर लाइक बेबाक के लाइक ठीक है जो करना है करें अलीवली, बट सम कैन गेट इनटू ट्रबल अगर वो कैमरे में भी नजर आ जाए. यू नेवर नो कौन किस बैकग्राउंड से है. इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो आई डोंट वांट टू पुट देयर सेफ्टी इनटू जेपर्डी अनलेस आई नो फॉर अ फैक्ट के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी हिप एंड हैपनिंग यूनिवर्सिटी में हूँ, सो आई नो वहाँ का क्राउड किस तरह का है एंड दे वोंट बी अनकंफर्टेबल. अगर होंगे भी तो मुझे कोई इतना इशू नहीं होगा उनको अप्रोच करने में. बट आई कांट गो टू अ रैंडम मार्केट जहाँ पे एक पर्टिकुलर टैक्स ब्रैकेट के लोग हैं उनके, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आई हैव कम फ्रॉम दोज पीपल, सो आई अंडरस्टैंड उनके चैलेंजेस क्या हैं. बट मोस्टली आई एम शाय. मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं माइक लेके किसी आंटी के मुंह की तरफ कर दूं एंड देन दे गेट अनकंफर्टेबल और मेरी वो एक शॉपिंग के लिए आए मैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब कर दूं. सो मैं खुद अवॉइड करता हूँ अप्रोच करना अनलेस इफ़ अ लेडी हैपन्स टू लाइक शाउट एट मी कि लाइक मेरे से भी बात करें, आई एम हैप्पी टू टॉक टू हर, बट दैट रियली एवर हैपन्स. तो मैं खुद नहीं चाहता. इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान में औरतों को हमने दड़बे में बंद किया हुआ है और ताला लगाया हुआ है, पिंजरे में बंद है, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर अ नॉर्मल सोसाइटी. एबनॉर्मलिटीज़ हैं उतनी ही हैं जितनी किसी और मुल्क में है, राइट. बस मीडिया में ज़्यादा दिखती हैं क्योंकि सॉफ्ट इमेज कम है हमारा, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट होती हैं. अदरवाइज़ जो ये लाहौर में हुआ कपड़े को लेके, अभी पिछले दिनों इंडिया में नहीं हो रहा था कि जो जिस दुकान के उसमें इंग्लिश लिखी हुई है 60% से ज़्यादा तो वो तोड़ रहे थे, राइट. वी कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि क्या बिल गेट्स डॉली की टपरी पर चाय पी रहे हैं वहाँ, तो यहाँ पे इतनी जहालत ही हो रहा है. Extremists exist everywhere and in all forms and shapes and sizes. It's just that good news का हमारा चंक इतना छोटा है कि सिर्फ bad news ही highlight होती है, right? So अगर इंडिया में वो बिलबोर्ड तोड़ रहे हैं दुकानों के, but at the same time Amazon का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बन रहा है outside the US, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, right? बिल गेट्स है, अभी जकरबर्ग आया हुआ है अम्बानी की शादी में, right? तो ये सॉफ्ट इमेज जो है ना, ये थोड़ा उसको दबा देता है. बट यहाँ पे चूंकि वो सब नहीं हो रहा तो जो गंद है वही उठ के ऊपर आ रहा है. दैट्स होल थिंग. सो इट्स नॉट लाइक कि हमारी औरतें बाजार में नहीं होती या ये कि मैं कोई नैरो माइंडेड हूँ. इट्स जस्ट दैट आई पर्सनली just don't want to put them on a spot कि वो घबरा जाएं कुछ भी हो जाए. I understand where they come from, उनके क्या challenges हैं. I don't want to put them on the spot unless someone requests. I don't want to shove my mic into a woman's mouth, especially in the areas where I go. You get what I'm saying? So I hope my concepts are clear, और I hope आप लोग को बात समझ आ गई होगी. Thank you so much for watching the episode. I hope आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. There's a lot that needs to be done with regards to our people, with regards to our country, and I wish to take this forward for as long as I'm around, because at the end of the day, my goal is to do things that are better for the people, better for Pakistan, better for our image globally. I'm the son of the soil, and I think I owe it to the country. एंड वो कोई भाषणबाजी नहीं है यार, बस यार मुल्क है यार, दिल करता है यार हमारा भी मुल्क अच्छा हो यार, खल्ली वल्ली यूरोप यार, ये भी बने ना यार किसी तरह. सो या वी आर ट्राइंग मैन. आई एम जस्ट आई गेट होपलेस, आई गेट डिसअपॉइंटेड अ लॉट एज वेल. बढ़िया चलता रहता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.